میں شکانہ ٹی وی کے تمام دیکھنے والے بہنوں کو بھائیوں کا تمام تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور بھائی کے لیے جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں، اس بات کے لیے میں خدا کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اور میں آپ کے سامنے آج عہد کے صندوق کے تعلق سے چند باتیں کروں گا۔ پہلا سیموئیل اور اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے۔ خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی بھاری برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آئیے ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے آج مجھے موقع دیا کہ میں یہاں تیرے کلام کی منادی کر سکوں، اور تمام یہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے لوگ جو ہیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اے مہربان پاک خداوند خدا، تو جو جلال سے بھرا ہوا خدا ہے، دل اور دل کی گہرائیوں سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو یہاں پر موجود ہے۔ تو نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ تو یہاں موجود ہے پیارے خداوند خدا۔ آج کے دن پیارے خداوند خدا، تو مجھ میں سے ہو کر بول۔ مجھ میں کوئی ایسی عقل دھنائی نہیں ہے پیارے خداوند خدا، نہ میرے پاس علم ہے، مجھے فقط تیرے روح القدس پر بھروسہ ہے پیارے خداوند خدا۔ تو مجھ میں سے ہو کر بول، تیرے نام کو جلال ملے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میں آج جو میں نے حوالہ لیا ہے پہلا سیموئیل اور اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل جو ہے، جس کے نام سے یہ کتاب ہے، اور اس کی ماں کا نام حنا اور اس کے باپ کا نام الکانا تھا۔ الکانا کی 2 بیویاں تھی، ایک حنا، اور حنا جو تھی اس کے رحم کو خدا نے بند کیا ہوا تھا، لیکن الکانا کی جو دوسری بیوی تھی اس کے ہاں اولاد تھی۔ اس سبب سے حنا جو ہے وہ بڑی پریشان تھی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن الکانا کی جو دوسری بیوی تھی اس کے پاس اولاد تھی، وہ بڑی خوشحال اور شادمان زندگی گزار رہی تھی۔ اور الکانا ہر سال کے سال ہیکل میں جاتا اپنے بال بچوں کو لے کر، اور وہاں پر جا کر قربانی چڑھاتا۔ لیکن ایک سال ایسا آیا کہ اس نے اپنی بیوی حنا سے کہا کہ تو میرے ساتھ چل، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ اس کی امید جو تھی، اس کے پاس جو اس کی خواہش تھی کہ خدا مجھے اولاد دے، اس کے پاس اولاد نہ تھی، وہ اس سبب سے بڑی پریشان تھی۔ لیکن الکانا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہیکل کے اندر گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے کیا کیا، اس نے جا کر قربانی چڑھائی، اور واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی حنا کو دیکھا اور وہ زار زار رو رہی تھی، اور وہ بڑی پریشان تھی، وہ بڑی تکلیف میں تھی۔ اور وہاں پر الکانا نے اس سے کہا، کیا میں تیرا 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں ہوں؟ اور اسے ان باتوں سے تسلی نہ ہوتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے میرے خیال میں، جیسے میں سوچتا ہوں کہ حنا نے بہت جگہوں پر گئی ہو اولاد کے لیے، ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، بڑی جگہوں پر بھاگ کر گئی ہو، لیکن کہیں سے جب اس کو امید نہ ہوئی، کہیں سے اس کو نہ خداوند نے اسے برکت دی، تو پھر اس نے اپنا رخ جو ہے وہ خداوند کے گھر کی طرف کیا، ہیکل کی طرف کیا، اور وہ ہیکل میں چلی گئی۔ جب وہ ہیکل میں پہنچی اور وہاں پر وہ دعا کرنے لگی، اور معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حنا رو رہی ہے، حنا دعا کر رہی ہے، لیکن آواز نہیں آ رہی۔ پریشانی کا، دکھ کا ایک ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ جس وقت بندہ روتا ہے تو رو رو کے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ حنا بھی اسی ٹائم کے قریب ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی،
लेकिन उस चर्च का जो पादरी है, उस चर्च का जो काहिन है, वो उसकी तरफ देख रहा है। और उसने जब उसे देखा और उसने कहा कि ये तो नशे की हालत में दुआ कर रही है, तो वो उसके पास आ गया और उसके पास आकर उसने उससे कहा कि कब तक तू ऐसे ही रोती रहेगी, कब तक तू यहां रहेगी? तो उसने कहा, नहीं मेरे आका, मैं तो अपने ही दुखों में, अपनी ही परेशानी की हालत में, अपनी ही मुसीबत में खुदावंद के आगे गिड़गिड़ा रही हूं, रो रही हूं। तो फिर खुदा ने अपने बंदा के मुंह में कलाम डाला और उसने कहा कि जो कुछ तूने मांगा है खुदावंद तुझे दे। हो सकता है उसने क्या वहां पर उसने मांगा होगा, उसने उस वक्त दुआ करते वक्त उसने कहा कि खुदा अगर तू मुझे औलाद दे, अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तुझे ही दे दूंगी। तो आज के जमाना के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि जिनके पास औलाद नहीं है, वो औलाद की खातिर तड़प रही हैं और वो कभी डॉक्टरों के पास, कभी हकीमों के पास, कभी तबीबों के पास, कभी किसी के पास, कभी जादूगरों के पास, कहीं ना कहीं क्या है वो चली जाती हैं ताकि हमें औलाद मिले। लेकिन औलाद चाहिए तो आपको खुदावन के पास आना पड़ेगा, खुदावन के करीब आना पड़ेगा। और हन्ना ने एक बेटा मांगा था, लेकिन खुदा ने उसे बेटा तो दिया और नबी दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे खुदा से मांगते हैं, लेकिन ये नहीं मांगते कि खुदावंद जब तू मुझे देगा तो ये औलाद मैं तुझे दे दूंगा, अगर बेटा होगा तो मैं तुझे दूंगी, मैं तुझे दे दूंगा। इसी तरह उसने कहा कि खुदावंद अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं तुझे दे दूंगी। और जब तक वो दूध पीता रहा बच्चा तो वो मां के पास रहा, लेकिन उसके बाद वही बच्चा जो है उसको हैकल में छोड़ दिया गया। हैकल के अंदर अहद का संदूक पड़ा हुआ था। तो ये वाहिद नबी है कि जिसने अहद के संदूक के पास रहकर परवरिश पाई, उसके करीब रहकर बड़ा हुआ, उसके करीब रहकर इसने तरबियत हासिल की। तो आज भी अगर खुदा आपको औलाद देता है, खुदा अगर आपको बेटी या बेटा दे, तो आप खुदावंद के कलाम से, खुदा के कलाम के करीब ले आए ताकि वो बच्चा जो है वो खिदमत गुजारी का काम करे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो बच्चा जो है सैमुअल अहद के संदूक के पास रहकर बढ़ने लगा और छोटी उम्र में खुदा ने इसके साथ बात की। उससे पहले उस चर्च का जो पादरी था, एली काहिन जो था उस चर्च के अंदर, जो खादम खिदमत कर रहा था, खुदा उससे अलग हो गया था। इसलिए अलग हो गया था कि वो है खुदा के कामों से ज्यादा अपने बच्चों को तरजीह दे रहा था, वो अपने बच्चों से ज्यादा प्यार कर रहा था। जैसे आज के जमाना के अंदर है, पादरी का जो बच्चा है, चाहे वो इस लायक ना हो, चाहे उसे खुदा की तरफ से बुलाहट ना हो, चाहे खुदा की तरफ से उसे खिदमत ना मिली हो, लेकिन वो पास्टर ही उसे बनाया जाता है। और इसी तरह का एली काहिन की ऐसी ही तबीयत थी कि वो अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता था। तो खुदा ने जब सैमुअल से बात की तो कैसी अजीब बात है कि जिसने उसे पाला है, जिसने उसे बड़ा किया है, जिसके साथ वो जिंदगी गुजार रहा है, खुदा ने उसी के लिए खुदा ने उससे कलाम किया कि जा इससे कह कि तेरे बच्चे जो हैं मेरे खिलाफ काम करते हैं और तू मर जाएगा। खुदा ने उसके साथ ये बात, उसके लिए कितना मुश्किल होगा सैमुअल के लिए, सैमुअल के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो जाकर एली काहिन को ये सारी बातें बताए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अहद का संदूक जो है आज के जमाना के अंदर, जिस जमाना में हम रह रहे हैं,
अहद का संदूक आप और हम हैं। हमारे अंदर खुदा रहता है, आपके अंदर खुदा रहता है, लेकिन एक अहद के संदूक के अंदर एक ही चीज रह सकती है। या तो आप कलाम को रख लें, या फिर आप ऐसा करें कि दुनियादारी को रख लें। दुनियादारी को आप छोड़ेंगे तो कलाम को रखेंगे तो हमेशा की जिंदगी आप पालेंगे। अगर आपके अंदर दुनियादारी होगी तो आपके अंदर कलाम टिक नहीं सकता। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो फलस्तीनियों ने जंग की, अशदूदियों ने जंग की बनी इस्राएल के साथ। जब वो जंग करने के लिए आए तो वो अक्सर हार जाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनका खुदा जो है, वो अहद का संदूक जो है, इनका खुदा जो है, वो जब आता है मैदान में तो ये जंग जीत जाते हैं। उन्होंने ये आपस में फैसला किया कि हम इनके खुदा को अपने मुल्क में ले जाएंगे, अपने वतन में ले जाएंगे। तो जब अहद का संदूक लेकर आए तो अशदूदी जो है उसे उठाकर अपने मुल्क में ले गए। और जब यहूदियों से, बनी इस्राएल से अहद का संदूक छीन गया तो उन्होंने जाकर उस अहद के संदूक को दजाउन के मंदिर में जाकर रखा। अब बड़ी दफा ऐसा होता है कि हमारे नजदीक जो हमारा खुदा है वो कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। आज हमारे दरमियान जो खुदा है वो कलाम है। तो हम इसे जिस तरह अशदूदियों ने, फलस्तीनियों ने जाकर दजाउन के मंदिर में रखा, हम इसको नहीं रख सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अंदर कलाम भी हो और हमारे अंदर दजाउन का मंदिर भी लगा हो और उस पर और भी कुर्बानियां चल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम जो है वो बुराई के खिलाफ है। तो जब वो वहां पर उन्होंने लाकर अहद के संदूक को रखा तो सुबह सवेरे जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि दजाउन का जो मूर्ति थी वो मुंह दे मुंह पड़ी हुई है। वो अंदर आए, उन्होंने आकर देखा कि ये क्या हो गया है, और उन्होंने फिर उसको उसकी जगह पर खड़ा कर दिया, फिर उसको उसकी जगह पर जाकर रखा। उन्होंने सोचा होगा कि शायद हो सकता है कि ये किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी सबब से गिर गया। उन्हें ये नहीं पता था कि खुदा जो है, दजाउन जो देवता है, इसके खिलाफ है। वो इस बात से बेखबर थे। जब दूसरे दिन आए तो उन्होंने देखा तो उसके बाजू जो है अलग है, धड़ उसका अलग है, और वो घबरा गए और वो परेशान हो गए और वो कहने लगे कि ये क्या हो गया है। फिर उन्हें पता चला कि खुदावन जो है, अहद का संदूक जो है, इस्राएलियों का खुदा जो है, वो हमारे खिलाफ है। और वो उनके खेत जलने लगे, उनके मुल्क के अंदर और तरह तरह की मुसीबतें आने लगी। आखिरकार अहद के संदूक के अंदर क्या था, अहद के संदूक के अंदर क्या चीज थी जिसकी वजह से इस्राएली ये मानते थे कि ये हमारा खुदा है। अहद के संदूक के अंदर 10 हुक्म थे, खुदा का कलाम पड़ा हुआ था, और उसके अंदर मन जो है वो पड़ा हुआ था, और उसके अंदर हारून की लाठी पड़ी हुई थी। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मन वो चीज है कि जब कौम बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में से निकले तो जब बियाबान में पहुंचे तो बियाबान के अंदर उन्होंने ये मन जो है आसमानी खुराक खाई। तो खुदावन ने उनसे कहा था कि आज के दिन, आज जितना चुनना है चुन लेना, कल मैं तुम्हें ताजा जो है दोबारा फिर मन बरसाऊंगा। लेकिन वहां पर कुछ लालची लोग भी थे। उन्होंने क्या किया, उस मन को, उस फरिश्तों की खुराक को कल के दिन के लिए समेट लिया। जब उन्होंने दूसरे दिन देखा तो वो खाने के लायक ना रही, वो खाने के काबिल ना रही, उसके अंदर कीड़े पड़ चुके थे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यही यहूदियों ने बात की। यीशु मसीह ने यहूदियों के साथ जब बात की तो उसने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए,
मैं आसमान से उतरी हुई रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। अगर आप आज अगर आपने कुछ खाना है तो वो खुदावंद को खा लीजिए, अगर आपने जिंदा रहना है तो जब एक ही रात में दूसरे दिन उस मन के अंदर कीड़े पड़ जाते थे, तो जब उस मन को मर्तबान के अंदर डालकर अहद के संदूक के अंदर रखा गया, जब अहद के संदूक के अंदर रखा गया जहां पर 10 हुक्म थे, तो कई रातें आई, कई हफ्ते, महीने, साल गुजरे, लेकिन वो खराब नहीं हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप खराब ना हो, आपके अंदर कीड़ा ना पड़े, तो आपको कलाम के पास आना पड़ेगा। जब आप कलाम के करीब आ जाएंगे तो आपको कीड़ा छू नहीं सकता। कीड़ा ही तो गुनाह है। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि अपना माल आसमान पर जमा करो, जहां कीड़ा और जंग खराब नहीं करता है। अगर आप सही रहना चाहते हैं तो आपको खुदावंद के कलाम के पास आना होगा। आज के दौर के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तफसीरें, अपनी अपनी बातें और अपने अपने कवानीन बना लिए हैं। बच्चों को कलाम की तरबियत से नहीं बल्कि टीवी और तरह तरह की और चीजों से सवारा जाता है। लेकिन आपको हमेशा की जिंदगी तभी मिल सकती है जब आप कलाम के अंदर आ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक और चीज अहद के संदूक के अंदर पड़ी हुई थी, वो थी हारून की लाठी। और हारून की लाठी को दरख्त से जुदा हुए काफी दिन हो गए थे, काफी साल गुजर गए थे, लेकिन वो अहद के संदूक के अंदर पड़ी हुई थी। और आप जानते हैं कि जब कोई लकड़ी किसी दरख्त से जुदा हो जाती है तो वो सूख जाती है। जब दरख्त से अलग हो जाए, उसकी जड़ बाकी ना रहे, तो वो दोबारा बहार नहीं हो सकती। क्योंकि ये लाठी जो है, ये अहद के संदूक में खुदावंद के कलाम के पास पड़ी हुई थी। तो जब उसको मजलिस में लेकर आए तो वो हरी होना शुरू हो गई। अब खुदावंद का कलाम कहता है तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाए और तुम्हारे लिए आसमान से ताजगी के दिन आए। अगर आप तौबा करते हैं तो आपके लिए आसमान से ताजगी के दिन आएंगे। तो इसी तरह से ये लाठी को जब मजलिस में लेकर गए तो ये हरी होना शुरू हो गई। तो कुछ देर के बाद इसके साथ पत्तियां भी लग गई और फिर इसके साथ बादाम भी लग गए। जब आप तौबा करेंगे, आसमान से आपके लिए ताजगी के दिन आएंगे। तो फिर याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिर आपको फल भी लगेगा। और फल ऐसा लगेगा कि आपके फल को देखकर हमारा खुदावंद, आपका खुदा भी खुश होगा। अगर आप कलाम के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि कोई शख्स भी कलाम से दूर रहकर बच नहीं सकता। कोई शख्स जो है कलाम से दूर रहकर खुशहाल नहीं हो सकता। कोई शख्स कलाम से दूर रहकर अपने बच्चों की बेहतर तरबियत नहीं कर सकता। कोई शख्स कलाम से दूर रहकर यह कहे कि मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल होगी, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करूंगा, इसके बाद इस मैसेज को क्लोज करूंगा। मेरा छोटा भाई वसीम, वो एक दुनियादार शख्स था और उसकी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह थे। अचानक झगड़ा हुआ और उसकी कमर के इधर हराम मगज के नजदीक किसी ने एक ईंट मार दी, तो उसके बाजू, हाथ, पांव काम करना छोड़ गए। सिर्फ और सिर्फ उसकी जुबान और उसका जहन काम कर रहा था। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो कलाम से दूर था। ऐसा ना हो कि आप कलाम से दूर रहकर परेशान हो जाए, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में जिंदगी गुजारे। तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कलाम के नजदीक लेकर। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।